Okay, good afternoon, students. Good afternoon, sir. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. So we are right now 38 in number. Let's wait for a few minutes, then we'll start. Okay, so let me start the session. So this is like in the previous lectures, previous two lectures, we have gone through distributed databases, and now again we are switching back to our topic, that is concurrency control. So let me brief you with whatever we have started till now. So like concurrency control ensures the consistency and reliability properties of transaction. So this you should know because exam point of view this is important. Concurrency क्या होती है, इसके फायदे क्या होते हैं, it's mentioned. Then there were certain problems related to concurrency control. Obviously बात है उन्हीं प्रॉब्लम की वजह से we pardon हाँ यही चल रहे हैं पूरे दिन हम नहीं आते देखो आगे तीन लोग हैं सुबह से हम देख रहे हैं क्लास में नहीं अच्छे से हुई है ओके सो क्योंकि कंकरेंसी करने पर when we'll do the concurrency we'll face certain problems. So in order to like avoid those problems there should be certain measures that we need to do. So that is those are called as concurrency control. हम वो पढ़ेंगे आज, ठीक है? Till now we have not gone through the concurrency control. Rather what we have gone through is कि concurrency control की क्यों जरूरत है, क्योंकि उससे related कुछ problems हैं. तो ये प्रॉब्लम हम देख चुके हैं. The last update problem, temporary update, incorrect summary problem, likewise. इनको हमने example wise भी देख लिया है. Even you can go through once more. Like now next is अगर आपको ध्यान हो एक concept मैंने बताया था serializability. So what serializability says whatever schedule is given to you. Serializability says whatever schedule is given to you, it becomes your responsibility कि उसको इस तरीके से मैनेज करो कि जो आउटपुट आए वो एकदम सीरियल शेड्यूल की तरह आए. आई होप यू रिमेम्बर. भूल गए हो तो दोबारा से याद कर लेना या मेरी रिकॉर्डिंग सुन लेना. Again I am telling you, serializability says it's a process which says whatever be the schedule given to you, the idea is you should transform that schedule in such a manner that it must give you result like serial schedule. मतलब उसका आंसर consistent होना चाहिए. So that is like the serializability concept. Here it is written, the goal is to develop concurrency control protocols that will assure serializability. Now there were few tests जो हमने देखे थे. अगर आपको ध्यान हो, अगर ग्राफ साइकिल बन जाती है तो वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, और अगर ग्राफ नहीं बनती है तो वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है. कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल का मतलब क्या है कि आप इंस्ट्रक्शंस को आपस में स्वैप करोगे नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग, जिससे कोई फर्क ना पड़े. लाइक ओके. The next is, अब हमें we are aware that what is concurrency. We know concurrency के फायदे क्या होते हैं. We know concurrency होने से क्या क्या problems आ सकती हैं. Now जब हमें फायदे पता है and we know the fact that, and when we know the fact कि फायदे ज्यादा हैं, so somewhere or the other it becomes our responsibility to make sure
that there are no problems associated. भाई जब हमने देख लिया कंकरेंसी करने का हर तरीके से फायदा है, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा मैकेनिज्म अपनाएं जिससे कि कुछ दो चार प्रॉब्लम आ भी रही है तो हम उनको भी कम कर सकें या कंट्रोल कर सकें. तो ये जो फिलॉसफी है, लाइक दिस कॉन्सेप्ट, दिस थिंग falls under the category of concurrency control algorithms. And if I talk about concurrency control algorithm, तो उनको दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है, pessimistic and optimistic. Now what do you understand by the term pessimistic and optimistic? Now ये तो नॉर्मल इंग्लिश के टर्म है, आई थिंक यू कैन वेरी वेल कोरिलेट. हम कहते हैं ना ये पेसिमिस्टिक आदमी है. तो पेसिमिस्टिक आदमी का मतलब क्या होता है? A person who is pessimist is हिंदी में अगर बात करें, it's like निराशावादी. Optimistic is आशावादी. Like say for example, if I am a pessimist person, so when I am moving out of my house, I'll say मैं आज घर से बाहर नहीं निकलूंगा क्योंकि आज बारिश आ सकती है ना? तो बारिश आ सकती है तो क्या बात है, आएगी तो आने दो, है ना? और ऑप्टिमिस्टिक क्या होगा? ऑप्टिमिस्टिक इज आशावादी इन हिंदी. सो ऑप्टिमिस्टिक पर्सन विल से ओके नो इश्यूज, अगर आज बारिश आने का प्रेडिक्शन भी है, आई विल मेक श्योर मुझे कुछ नहीं होगा, देखी जाएगी जो होगा, समथिंग लाइक दिस, है ना? तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पेसिमिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक. उसी तरीके से कंकरेंसी कंट्रोल एल्गोरिथम्स भी दो तरीके की होती हैं, पेसिमिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक. ठीक है, अब कंकरेंसी कंट्रोल में पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक का क्या मतलब है वो विल सी नाउ. Okay. Now, as you can see, pessimistic में mainly जो approaches आती हैं, they are locking and timestamp. And primarily हम भी उसी को focus करेंगे. There are two ways of like following concurrency control as far as pessimistic approach is concerned. So there are two, one being locking, another one being the टाइम स्टैम्पिंग. ऑब्वियसली जो बाकी है we'll discuss, देख लेंगे उसको भी. And next is optimistic. So without wasting time, let us jump to the concurrency control technique. जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कुछ कैटेगरीज हैं. पहली दो rather I should say शुरुआत की जो तीन है, that falls under pessimistic, and the fourth one optimistic concurrency, that falls under optimistic. ठीक है? Okay. Now, without wasting time, हम locking based concurrency control algorithm को देखते हैं. Now, before starting with this, this is my way of teaching the class, that like before starting some heavy topic, थोड़ा सा real world से अगर उसको correlate किया जाए, so it would be nice. Okay. Now, say for example, अगर आपको ध्यान हो, जब हम छोटे होते थे, छोटे in the sense 10th, 11th, 12th, मान लीजिए आप बोर्ड का एग्जाम देने गए and you are like sitting there in an exam hall, and obviously when I'm saying it's a board exam, so needless to say you are in some outstation center. Outstation means आपके स्कूल से बाहर. Okay, fine, fair enough. Now say for example एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया जिसमें लॉग टेबल की जरूरत है. This happens. आपकी क्लास में मान लीजिए 40 odd students are attempting their exam there, sitting on the benches, and the management of that particular school, they were aware that today's students will be requiring the log tables. So what they did is they come up with some 15 log tables. So say for example, the invigilator who is doing the duty there, he or she has like distributed all 14 of log tables, and only one is remaining. So even for that one, like somebody asked, and invigilator gave that log table to that student. Now what happened is कि 15 बच्चों ने already ले ली है और क्लास में बैठे हैं 40 बच्चे, तो कहीं ना कहीं 40 को उसको जरूरत है यूज करना है. अब इसे कंकरेंसी कहते हैं कि 40 लोगों में 15 आपने शेयर की हुई. अब मान लीजिए आप 16th पर्सन हो जिसको उस लॉग टेबल की उसी समय पर जरूरत है. नाउ फैकल्टी क्या करेगा? व्हाट फैकल्टी विल डू? Am I teaching to deaf and dumb people?
I mean, sorry for my language, but this is what I feel. No sir. Okay, so you are you can sense, like you can hear. हाँ जी. So एग्जामिनर क्या करेगा, और रादर एग्जामिनर इन्विजिलेटर क्या करेगा उस सिचुएशन में? या तो सर वो नहीं ला के देगा, हाँ जी, या तो सर वो कहीं और से ला कर देगा एक और। वो है ही नहीं, लाके कैसे देगा, है ही नहीं, फिर क्या करेगा? सर किसी और स्टूडेंट से दे देगा लेके। कब? वही कब कब? जब उसका पूरा हो जाएगा। एग्जैक्टली यही मैं कह रहा था. सो यही कंकरेंसी होती है. कंकरेंसी के केस में अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको वेट करना पड़ता है. आप ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो अभी कि नहीं? यस सर. आई थिंक उसमें ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, वेट वाला. ठीक है ना? नाउ आई गिव यू वन मोर एग्जांपल. मान लीजिए दो छोटे बच्चे हैं घर में, एक ही घर में दो छोटे बच्चे हैं, एंड देयर इज वन टॉय. ठीक है? दोनों की एज होगी 3-3 साल मान लो, हो सकता है एक की 4 साल हो. There is one toy only, and both the kids want the same toy at the same time. अब फिर कैसे होगा? पेरेंट्स कैसे करेंगे? सर टाइम डिवाइड कर देंगे कि इस समय ये करेगा और इस समय ये यूज करेगा. एग्जैक्टली. ठीक है, यही मैं सुनना चाह रहा हूं. तो उससे होगा क्या? मान लीजिए दो बच्चे ए एंड बी, तो ए को सबसे पहले हमने अलॉट कर दिया. तो जब ए को अलॉट कर दिया आधे घंटे के लिए, तो ये फिक्स हो गया कि बी उस टाइम पर कुछ नहीं कर सकता. बी क्या करेगा? बी वेट करेगा. ठीक है? फिर जब ए उस टॉय को रिलीज कर देगा, दे देगा, तो बी उसको एक्सेस कर लेगा. सेम कॉन्सेप्ट है. यहां पर क्या कहा जा रहा है कि मान लीजिए एक कंकरेंसी की सिचुएशन आ जाती है जहां पर कि एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन को एक ही समय पर एक डेटा आइटम चाहिए. मान लीजिए एक्स. तो कैसे होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसको पहले मिल जाएगा वो उस पर लॉक लगा देगा. लॉक से फायदा क्या होगा कि अगले वाले को पता चल जाएगा कि अब मुझे मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस पे तो ऑलरेडी लॉक लगा हुआ है, और जब तक लॉक रिलीज नहीं होगा तब तक ये मुझे मिलेगा नहीं. अरे समझ में? अब लॉक होते हैं दो तरीके के. एक होता है रीड लॉक, एक होता है राइट लॉक. रीड लॉक को हम शेयर्ड लॉक कहते हैं, राइट लॉक को हम एक्सक्लूसिव लॉक कहते हैं. अब शेयर्ड और एक्सक्लूसिव क्यों कहते हैं वो भी सुन लो. वो इसलिए कहते हैं कि अगर किसी आइटम पे आपने रीड लॉक लगाया है और उसी समय पर कोई और ट्रांजैक्शन सेम डेटा आइटम को एक्सेस करना चाहता है, तो उसमें शेयरिंग पॉसिबल है. आप शेयरिंग कर सकते हो, क्योंकि रीड कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. लेकिन अगर किसी के पे ऑलरेडी राइट लॉक लगा हुआ है, अगर किसी ट्रांजैक्शन ने किसी डेटा आइटम पे ऑलरेडी राइट लॉक लगा रखा है, तब दूसरा बंदा उसी डेटा आइटम पे जिस पे ऑलरेडी राइट लॉक लगा हुआ है कुछ नहीं कर पाएगा. ना रीड कर पाएगा ना राइट कर पाएगा. व्हाट डज दिस मीन? इट मींस कि राइट लॉक जिसने पहले लगा रखा है वो एक्सक्लूसिवली उसने अपने लिए लगा रखा है, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर शेयर करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी. है ना? हम देख चुके हैं गड़बड़ कैसे होती है. वही कंकरेंसी कंट्रोल की सारी प्रॉब्लम है. लॉस्ट अपडेट, डर्टी रीड, इनकरेक्ट सबमिट. सो दैट्स द कॉन्सेप्ट. ठीक है? ओके. Now exclusive mode, data item can be both read as well as written. अगर मान लीजिए मुझे I'm so sorry for this trouble. Now you can hear me? Yes, sir. Sir, now you are not audible. अभी आवाज आ रही है? हाँ. यस सर. ठीक है, थैंक यू. सो
लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, सो मैं ये कह रहा था कि जब भी आपको रीड करना होता है तो हमेशा शेयरिंग लॉक ही लगता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लाइन, लॉक रिक्वेस्ट आर मेड टू कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर। जब भी आप ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हो, सो देयर इज वन पर्सन दैट इज कॉल्ड एज कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर, जो कि लॉक रिक्वेस्ट देता है। नाउ लास्ट इज ट्रांजैक्शन कैन प्रोसीड ओनली आफ्टर रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड। भाई अगर मैं कोई डेटा आइटम को यूज करना चाहता हूं, चाहे शेयर्ड में या एक्सक्लूसिव में, तो जब तक मुझे लॉक नहीं मिलेगा मैं उसको यूज नहीं कर पाऊंगा और तब तक ट्रांजैक्शन शुरू नहीं होगा। सो दिस इज इवन इंपॉर्टेंट टू नोट। नाउ द लॉक बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल एल्गोरिथम, आई थिंक ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख सकते हो। ये कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स होती है। आप देखो, एक साइड पे मैंने लिख दिया शेयर्ड और एक्सक्लूसिव, एक पे लिख दिया शेयर्ड और एक्सक्लूसिव हॉरिजॉन्टल। S stands for shared, X stands for exclusive। आप देखिए कि अगर शेयर्ड नहीं होगा, एक्सक्लूसिव लगा और कोई और एक्सक्लूसिव की रिक्वेस्ट कर, कुछ नहीं। तो ये तो हमने मैट्रिक्स के थ्रू बता दिया, बट अभी से प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स बैक हमने ये डिस्कस किया था। कैसे? तरीका दूसरा था। मैंने कहा था रीड 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 कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, बाकी सारे कॉन्फ्लिक्ट। यही वजह है Am I audible? Yes sir. तो जवाब Yes, क्यों sir. दे रहे हो? Sir, I'm not asking some money for saying yes or sir, no. your network connection is lost. अभी आवाज आ रही है? Yes sir. Okay. So now if we talk about this thing, a transaction may be granted a lock on any item if the requested lock is compatible with locks। वो ये कह रहा है अगर ट्रांजैक्शन को लॉक लेना है तो वो तभी मिल पाएगा जब दूसरे किसी ने लॉक ले रखा है तो वापस से कंपैटिबल हो। तो आप ऑलरेडी देख चुके हो सिर्फ एसएस के केस में। एनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कैन होल्ड शेयर्ड लॉक्स। कितने सारे लोग एक साथ शेयर्ड लॉक लगा सकते हैं, बट इफ एनी ट्रांजैक्शन होल्ड्स एन एक्सक्लूसिव ऑन द आइटम, नो अदर ट्रांजैक्शन में होल्ड एनी लॉक ऑन द आइटम। अगर किसी ने एक्सक्लूसिव लगा रखा है तो नहीं हो पाएगा, अदरवाइज हो सकता है। If a lock cannot be granted, the requesting transaction is made to wait। आपको वेट करना पड़ेगा till all incompatible locks held by other transaction have been enabled। The lock is then granted। obvious सी बात है ना, मैं किसी मूवी लाइक टिकट मूवी के काउंटर पे खड़ा हूं, तो मेरा नंबर जब आएगा तभी तो मुझे टिकट मिलेगी, और मेरा नंबर कब आएगा? जब बाकियों का काम हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पर है, ठीक है। Okay, now we'll see next slide। This will make more like इजी। ओके, मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन है T2, उस पे हमने क्या किया, एक S लॉक लगा दिया A आइटम पे। तो क्योंकि मैंने S लॉक लगाया है, S स्टैंड्स फॉर शेयर्ड, तो मैं उस डेटा आइटम को अब रीड कर सकता हूँ। राइट नहीं कर सकता, राइट के लिए एक्चुअली मैंने रीड किया, मैंने उसको छोड़ दिया। फिर उसके बाद B को मैंने शेयर्ड रीड किया, तो इसलिए मैंने S लॉक लगाया, रीड कर दिया, उसको छोड़ दिया, अनलॉक कर दिया और डिस्प्ले करा दिया A+। अच्छा, एक चीज और है, लॉक जितना जरूरी है लॉक करना किसी आइटम को एक्सेस करने के लिए, डेटा आइटम, उतना ही जरूरी है उस लॉक को रिलीज करना। क्योंकि ऐसा नहीं वो लॉक आपका हो गया, कोई और भी तो उस लॉक को यूज करना चाहेगा, तो इस केस में आपको करना पड़ेगा। अगर आपको ध्यान हो थोड़ा सा, और अगर आपने प्रोग्रामिंग कंप्यूटर की अच्छे से की है, so there is a concept of like क्या कहते हैं उसको, मेमोरी स्पेस को रिलीज करना, ठीक है। अगर किसी ने पढ़ा हो तो मेमोरी स्पेस को रिलीज करना, so that's the same concept। आपको मेमोरी कहते हैं ना, गार्बेज कलेक्शन, लाइकवाइज मेमोरी आपको रिलीज भी करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये एग्जांपल बताया गया, लुकिंग एज अबव इज नॉट सफिशिएंट टू गारंटी इफ ए। हाँ, अब इसमें प्रॉब्लम है कि अगर इन बिटवीन ए और बी की वैल्यू कुछ चेंज हो गई तो जो सम होगा
वो गड़बड़ हो जाए। अब ध्यान से पढ़िए इसको, कह रहा है लॉकिंग एज अबव इज नॉट सफिशिएंट टू गारंटी सीरियलाइजेबिलिटी। जैसे हमने ऊपर लॉक लगाया वो सही नहीं है तरीका। क्यों? वो ये कह रहा है कि अगर इन बिटवीन ए और बी के रीड होने के बीच में अगर इनकी वैल्यू चेंज हो गई तो फिर टोटल सम रॉन्ग हो जाए। यानी कि ऐसे ही आप किसी को लॉक अनलॉक नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, एक रूल निकालना पड़ेगा। तो एक लॉकिंग का प्रोटोकॉल निकालना पड़ेगा और उसके तहत ही हम काम करेंगे। एंड दैट लॉ इज कॉल्ड एज, दैट प्रोटोकॉल इज कॉल्ड एज two-phase locking protocol. It is called as two-phase locking protocol. Let us see this example जो आपको बताया गया। अब आप इसको ध्यान से देखिए। पहले हमने क्या किया कि T1 ने कहा कि भाई मुझे एक लॉक दे दीजिए X B आइटम पे एक्सक्लूसिव। तो कंकरेंसी कंट्रोल का जो मैनेजर था उसने उसको दे दिया। अब क्योंकि B उसने लॉक लगा रखा है तो वो B को यूज कर सकता है। तो पहले उसने रीड किया B को, फिर उसने उसकी कुछ वैल्यू चेंज कर दी। वैल्यू चेंज करने के बाद उसने राइट कर दिया क्योंकि वो कर सकता था राइट, क्योंकि एक्सक्लूसिव लॉक। फिर उसने अनलॉक कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद T2 ने क्या किया, A को रीड करने के लिए सोचा, रीड किया, रीड कर लिया, फिर उसको अनलॉक करके वापस कर दिया। फिर उसके बाद उसने लॉक B की रिक्वेस्ट करी, किसके लिए, शेयर्ड मोड, वो भी उसको मिल गया। देन आफ्टरवर्ड्स आपने उसको रीड किया, फिर अनलॉक किया, एंड लाइकवाइज इस तरीके से आपको ये करना है। नाउ अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है आप जल्दी जल्दी डेटा को रिलीज कर रहे हैं। जैसे जैसे आपका काम होता जा रहा है वैसे वैसे आप उसको रिलीज करते जा रहे हो। तो ये एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है देख लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पर x की वैल्यू इनिशियली थी 50 और y की वैल्यू थी 20। अब आपने जो काम किया उस पे आप देखिए वैल्यू क्या हो गई x की। यहाँ पर x की वैल्यू 50 से एक बढ़ के 51 हो गई। यहाँ पर हमने राइट किया वो 51 हो गई, और ये राइट की हुई वैल्यू यहाँ पर रीड होगी 51, और 51 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया हो गई 102, और यहाँ वैल्यू हो गई इसकी राइट क्या कहते हैं 102। फिर उसके बाद हमने क्या किया, अब यहाँ लिखा भी हुआ है रिलीज x टू T2, क्योंकि अब यहाँ पर x ये यूज कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसने लॉक लगा रखा होगा। तो लॉक लगाने का मतलब ये है कि अगर फिर वही लॉक अगर B को T2 को चाहिए तो T2 तो ऐसे यूज नहीं कर पाएगा जब तक आप उस लॉक को रिलीज नहीं करोगे। तो लॉक को उसने रिलीज किया T2 के लिए, तभी वो यूज करता है। अब y की वैल्यू देख लेते हैं। तो y की वैल्यू थी इनिशियली 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि उस पर अब हम लॉक लगा के काम कर रहे हैं। 20 से मल्टीप्लाई किया 2 से 40 हो गई। यहाँ पर इसकी वैल्यू 40 थी, 40 होने के बाद इसकी वैल्यू एक कम कर दी गई और हो गई वो 39। तो आइडियली इसका आंसर आना चाहिए था 102 और 39। बट अगर आप इसको ध्यान से देखें, अगर आप इस ट्रांजेक्शन को ध्यान से देखें, इसमें पहली चीज तो ये है कि अगर आप पहले T2 को सॉल्व कर लो और फिर T1 को सॉल्व करो तो आप करके देखिएगा इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा 101 और 39। तो ये तो गलत बात है, ये नहीं आना चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए, यानी कि इस लॉकिंग वाले कंसेप्ट में देयर इज वन स्मॉल प्रॉब्लम एंड वी नीड टू चेक दैट प्रॉब्लम। सो व्हाट शुड वी डू? सो द आंसर इज टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। एग्जाम में इसी तरीके से आपसे पूछा भी जाएगा। तो अब इसके दो फेज क्या है? तो पहला फेज है इसका ग्रोइंग फेज। ग्रोइंग फेज क्या कहता है कि इस फेज में ट्रांजैक्शन सिर्फ लॉक ले पाएगा, रिलीज नहीं कर पाएगा। और असल में ग्रोइंग है ना, तो कह रहा है इस फेज में वो सिर्फ लॉक ले पाएंगे। पहला एक लॉक ले लिया, दूसरा ले लिया, तीसरा ले लिया, चौथा ले लिया, पांचवा ले लिया, छठा, मान लो टोटल 8 लॉक ले रहे थे, 8 लॉक ले लिए, रिलीज नहीं करोगे। अब काम हो गया, अब रिलीज करने की बारी आई। तो दूसरी फेज को हम कहते हैं श्रिंकिंग फेज। अब आप सारे रिलीज करोगे बट कोई नया लॉक ले नहीं पाओगे। तो इस तरीके से दिस इज बेटर, है ना। द प्रोटोकॉल एश्योर सीरियलाइजेबिलिटी, मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है, और साथ में ये भी लिखा है इट कैन बी प्रूव्ड दैट द ट्रांजैक्शन कैन बी सीरियलाइज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर लॉक पॉइंट। नाउ व्हाट इज द लॉक पॉइंट? लॉक पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सारे जो लॉक ऑब्टेन करने होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और वहां से रिलीज होना
शुरू हो जाता है। अब देखो यहाँ लिखा भी हुआ है वेयर अ ट्रांजेक्शन एक्वायर्ड इट्स फाइनल लॉक, क्योंकि फिर उसके बाद अब वो रिलीज ऑफ लॉक शुरू कर देगा। ठीक है, ओके। Now this is the example of two-phase locking protocol if you see by the help of a diagram. So यहाँ पर हमने क्या किया, फेज 1 में हम लोग लॉक लेते रहे अप 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 एंड लॉक पॉइंट के बाद अब यहाँ रिलीज करते गए डाउन 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 डाउन। कैन यू प्लीज टेल मी, आपको कोई इस काम में प्रॉब्लम लग रही है? एंड दैट इज एक्चुअली द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड। Can you make out any like disadvantage here? Any problem here? सर पहले सारे लॉक ऑब्टेन करने पड़ेंगे फिर ही बाद में रिलीज कर पाएंगे। मतलब बीच में अगर कोई हटाना चाहा तो दिक्कत हो जाएगी। हटाना क्या चाहा? अरे मतलब बीच में जो लॉक है उसे पहले रिलीज करना चाहा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो कहेगा सारे लॉक पहले लेके जाओ फिर सारे। आपने 50% सही बताया। See the idea is, मान लीजिए इस फेज 1 का जो पहला लॉक हमने लगाया था उसका काम सिर्फ 2 मिनट्स का था। अब 2 मिनट बाद वो फ्री हो गया, लेकिन ये सारे लॉक जो लग रहे हैं इन सारे लॉक को लगने में टाइम लगेगा आधा घंटा या 1 घंटा, यानी 1 घंटे तक कोई भी लॉक रिलीज नहीं हो पाएगा क्योंकि किसी का काम खत्म ही नहीं होगा। बट ये तो फिर गलत बात है, क्योंकि ये जो फेज 1 का जो पहला लॉक था वो अपना काम कर चुका है। तो अगर हम किसी तरीके से इसको रिलीज कर देते तो किसी और के काम आ जाता यही चीज, बट वो हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा रूल कहता है जब तक सारे लॉक रिलीज नहीं होंगे तब तक हम नए ऑब्टेन नहीं करेंगे। तो ये एक इसकी डिसएडवांटेज। तो आप यहाँ पढ़ सकते हो प्रॉपर्टीज टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल के फायदे क्या है। इट जनरेट्स कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल, यानी कि यहाँ पर शेड्यूल होते हैं वो सीरियलाइजेबल रहते हैं। बट एक प्रॉब्लम ये है कि बट शेड्यूल्स में कॉज कास्केडिंग अबॉर्ट्स। कास्केडिंग अबॉर्ट का मतलब है कि अगर एक का अबॉर्ट हो गया तो लाइन से सबके अबॉर्ट हो जाएंगे। कैसे? लिखा भी हुआ है यहाँ पे, इफ अ ट्रांजैक्शन अबॉर्ट्स आफ्टर इट रिलीजेस अ लॉक। अगर एक लॉक के रिलीज होने पर, एक लॉक के रिलीज होने पर ट्रांजैक्शन ने अबॉर्ट कर दिया, तो क्योंकि उसी वैल्यू को बहुत सारे लोग यूज कर रहे होंगे तो उन सबको भी अबॉर्ट करना पड़ जाएगा। अगर आपको ध्यान हो, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था रिकवरेबल और इररिकवरेबल शेड्यूल, तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ। अच्छा, अब टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल में भी कैटेगरीज आती हैं। 2 कैटेगरी है, एक बेसिक 2PL है, एक कंजर्वेटिव है। बेसिक क्या कहता है? ऑल लॉक ऑपरेशंस बिफोर द फर्स्ट ऑन लॉक। तो ये तो हमने देख लिया, जो ये डायग्राम दिखा रहा है ये बेसिक का ही डायग्राम। अब कंजर्वेटिव क्या कहता है? कंजर्वेटिव का मतलब, और या फिर स्ट्रिक्ट 2PL। कंजर्वेटिव का मतलब होता है दिमाग से जो आपकी सोच है वो पुराने ख्यालात की है, मतलब बहुत डरी डरी सी सोच है। तो ये क्या कह रहा है? लॉक ऑल द आइटम इट एक्सेसेस बिफोर द ट्रांजैक्शन बिगिंस एग्जीक्यूशन। मतलब ट्रांजैक्शन के शुरू होने से पहले आपको जितनी चीजें चाहिए उनको अपने पास रखो। जैसे कई बार क्या होता है ना, 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक होता है जैसे पढ़ने बैठा आज रात को 10 बजे, सो पढ़ाई स्टार्ट की, किसी चीज की जरूरत पड़ी, किसी कॉपी की, तो बीच में थोड़ा सा 2 मिनट का गैप लेके वो मटेरियल ले लिया और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। नाउ देयर इज वन अनदर टाइप ऑफ स्टूडेंट, वो क्या करता है, पढ़ाई शुरू होने से पहले ही अपनी बुक्स भी ले लेगा, नोट्स भी ले लेगा, टीचर के भी जो होंगे वो ले लेगा, पेन ड्राइव का मटेरियल ले लेगा, अपनी डायरी ले लेगा, नोटबुक्स ले लेगा, सब। सो दिस कॉल्ड एज कंजर्वेटिव 2PL, मतलब पहले से ही सारी आइटम एक्वायर करना। अब इसमें प्रॉब्लम भी होती है, जैसे कि इसका फायदा क्या है 2PL में, इसमें कभी डेडलॉक नहीं है, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट इज समथिंग यू विल कम टू नो जैसे जैसे हम आगे बढ़े। इसी में स्ट्रिक्ट 2PL क्या कहता है? holds the exclusive lock till the end of the transaction। तो इसको एक एक करके आप रीड कर सकते हो। स्ट्रिक्ट 2PL ये कहता है कि मैं एक्सक्लूसिव लॉक को एंड तक रखूंगा, और रिगरस क्या कहता है? फॉरगेट अबाउट एक्सक्लूसिव, इवन शेयर्ड मैं लास्ट तक रखूंगा। बट इसका फायदा क्या है कि कास्केडिंग अबॉर्ट बच जाते हैं। और कन्वर्जन ऑफ लॉक्स में 2 कंसेप्ट होते हैं। अपग्रेड, अपग्रेड का मतलब जैसे कोई होता है ना आदमी के पास, जैसे किसी की सैलरी मान लीजिए 1 लाख है पर मंथ, 1 लाख रुपए पर मंथ, तो उसकी सैलरी अपग्रेड हो गई, सो 1 लाख से 2 लाख हो गई। तो अपग्रेड का मतलब होता है शेयर्ड से एक्सक्लूसिव में जाना। शेयर्ड में
तो कोई भी यूज कर सकता है, एक्सक्लूसिव में कम होते हैं। सो अपग्रेड हो गया है ना, और टफ हो गया। डाउनग्रेड एक्सक्लूसिव से शेयर्ड पे, ठीक है। नाउ दिस इज द डायग्राम फॉर स्ट्रिक्ट एंड रिग्रेस। अब वो ये देखिए, आप ध्यान से देखिए कि जो बेसिक वाला था उसमें स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे लॉक का काम होता जा रहा था वैसे वैसे हमने रिलीज करना शुरू किया। बट स्ट्रिक्ट और रिग्रेस ये कहता है जब तक आखिरी ट्रांजैक्शन का लॉक का काम नहीं हो जाता तब तक मैं पहले वाला लॉक भी रिलीज नहीं करूं। तो इससे क्या है, इससे फायदे ये हैं, इससे गड़बड़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। आई होप द डायग्राम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आपको डायग्राम देख के समझ में आ जाएगा कि इसका फायदा क्या है, कि जब तक लास्ट लॉक का काम खत्म ना हो जाए तब तक आप स्टार्टिंग लॉक जो आपने लॉक लगाया था वो भी रिलीज ना। So that's the concept। ये टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल तो बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम आप पढ़ रहे हो तो आपने शायद डेडलॉक के कंसेप्ट पढ़ा होगा। कोई मुझे बताएगा डेडलॉक क्या होता है? सर जब कोई एक प्रोसेस मतलब कोई एक प्रोसेस गया होता है एग्जीक्यूट होने के लिए और उसके पास किसी चीज की कमी पड़ जाती है और जो जिसके पास वो चीज होती है वो आ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी कोई और वहां पे है, उस कंडीशन में डेडलॉक लग जाता है। ओके, हम सब लोग इंडिया में रहते हैं। व्हाट अ फनी क्वेश्चन आई एम सेइंग। सब लोग इंडिया में रहते हैं। सो एट टाइम्स वी सी कि जो हमारे सिटी में या और भी कोई भी जगह ले लो, डिस्ट्रिक्ट्स में, सिटीज में, हम कई बार देखते हैं व्हाट वी कॉल इट एज चौराहा, है ना, जहां से चारों तरफ का रास्ता जाता है, चार डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो हमने देखा हो कई बार वहां जैम लग जाता है। नाउ व्हाट इज दैट जैम? जैसे हिंदी में कहते हैं ना जाम लग गया, व्हाट इज दैट जाम? सर जब किसी भी एक तरफ का इंसान दूसरी तरफ ना जा पा रहा हो, सारी गाड़ियां बीच में। करेक्ट। जैसे मैं नॉर्दर्न डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं साउथ से नॉर्थ में जा रहा हूं, तो मैं नहीं जा पा रहा। क्यों? क्योंकि मैं अपने ठीक ऑपोजिट वाले पर्सन को ये कह रहा हूं कि भाई साहब आप साइड हो जाइए, तो मैं निकल जाऊं। वो कह रहा है भाई साहब आप तो निकल जाओ, मैं तब निकलूंगा जब आप साइड होगे। तो ना मैं साइड हो रहा हूं ना वो, एंड हम दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ अ लॉ, ठीक है, डेड लॉ। मान लीजिए, मैं आपको और सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं। देयर आर टू व्हाट शुड आई से, देयर आर टू ट्रांजैक्शंस ए एंड बी। ए के पास एक रिसोर्स एक्स है, बी के पास एक रिसोर्स वाई है, ठीक है। ए को वो रिसोर्स चाहिए जो बी के पास है, और बी को वो रिसोर्स चाहिए जो एक्स के पास, ए के पास है। अब ए अपना रिसोर्स तब तक बी को नहीं देगा जब तक बी से कोई दूसरा रिसोर्स नहीं आ जाएगा, क्योंकि वो डिपेंडेंट है। सेम गोज विद बी। बी अपना रिसोर्स तब तक ए को नहीं देगा जब तक ए से उसके पास एक रिसोर्स है। सो आपस में दे आर इन अ डेडलॉक कंडीशन, nobody can move। So this is like one of the example of deadlock। ये आपस में T3 और T4 का एक डेडलॉक हो गया है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको समझ में भी आ जाएगा। आपने एक एक्सक्लूसिव लॉक लगाया बी पे। ना बी पे क्योंकि एक्सक्लूसिव लॉक लगाया तो आप उसको रीड भी कर सकते हो, राइट भी। तो मैंने पहले रीड किया, फिर उसके बाद मैंने राइट कर दिया, खत्म कहानी। अब एक ए डेटा आइटम है जिसपे लॉक लगा दिया किसने? लॉक लगा दिया किसने? लॉक लगाया है ए पे लॉक लगाया T4 ने। कौन सा? शेयर्ड वाला। तो लॉक लगाया तो वो उसको रीड भी कर सकता है। अब प्रॉब्लम ये है, यहां पर T4 को लॉक लगाना है कौन सा? शेयर्ड वाला। किस पे? बी पे। लेकिन वो नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि बी ने एक्सक्लूसिव लॉक लगा रखा है। बी ने एक्सक्लूसिव लॉक लगा रखा है, और मजे की बात अभी तक अनलॉक नहीं किया। अच्छा, उसको ऑपोजिट एंड पे देख लीजिए। उसके बाद ठीक सेम सिचुएशन है कि T4 ने शेयर्ड लॉक लगा रखा है ए पे, और वही लॉक एक्सक्लूसिव चाहिए ए को, बट क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि उसने अनलॉक नहीं किया। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। क्लियर? सो आई थिंक लॉकिंग पोर्शन इज क्लियर,
and it is done from my end. थोड़ा सा आप इसको पढ़िएगा, and in the next lecture we'll look into the timestamp based concurrency control algorithm. एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए बेटा क्या होता है, अभी कोविड अगर नहीं होता तो ये जो कोविड नहीं होता, जो हमारा एग्जाम का पैटर्न फॉलो होता वो होता ऑफलाइन, एंड अभी हम जो फॉलो कर रहे हैं वो है ऑनलाइन. एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई फील दैट ऑनलाइन इज मोर टफ एंड मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि ऑनलाइन में आपको ये नहीं पता होता कि जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो कहां से आएगा. सो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू आंसर वेल. तो उसको ध्यान में रखते हुए आपकी जो पढ़ाई है वो थॉरो होनी चाहिए. तो वो थॉरो कब होगी? जब आपकी इन डेप्थ नॉलेज होगी. तो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, आई विल रिक्वेस्ट कि आप जो अपनी पढ़ाई करें उसमें पुराने ईयर्स के कुछ क्वेश्चन पेपर्स को जरूर देख लें, तब जाकर आप इसको और अच्छे से कर पाओगे. तो मेरी रिक्वेस्ट है पुराने ईयर के पेपर्स को एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, खास तौर से इस टॉपिक के लिए जो मैं अभी आपको करा. ठीक है, थैंक यू एंड टेक केयर, बाय. थैंक यू सर.